Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to talk about our solar system, जिसके अंदर sun आता है, planets आते हैं, various types of comets, asteroid, meteors, ये सब exist करते हैं. Basically, अगर हम बोलें तो हमारे solar system के ये सारी चीज़ें members हैं. Alright, और इन सभी को मिला के solar system बनता है. Alright, it's just like a family and family of different things like different planets, sun, and you can say all the comets, asteroids, meteors, ये सब मिलके solar system बनाते हैं. So we will be talking about that. ठीक है, हम one by one हर एक चीज़ के बारे में study करेंगे. Alright, and you all know this chapter is totally important for the school examination as well as the Olympiad. So अगर आप लोग school examination के लिए तैयारी कर रहे हैं, then these lectures are for you. And अगर आप लोग Olympiads के लिए तैयारी कर रहे हैं, then these lectures are for you. बेसिकली यू जस्ट नीड टू वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारा ऐसा यू कैन से कंटेंट मिल सकता है जिससे आप लोग अपने स्कूल एग्जामिनेशन या फिर ओलंपियाड को क्रैक कर सकते हैं. ऑलराइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Now, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code TTB08 in the search box of the Telegram app. If you do so, 8th class का channel appear हो जाएगा and you can join that channel and access all the DPPs and study material along with the notifications of our classes. Now see, this is the team which is going to help you a lot as we are putting so much of our efforts right into these lectures so that we provide you all the content necessary for your examination and the content which should be in your mind. That means you should have knowledge about that content. You should be knowing about the fact, the formulas, and all the concepts, definitions and all, right? That is why we are going to do this for you. This is our effort from us and these are free for everybody. So make sure that if you are watching these video lectures for now, right? So if you are watching that, then you should spread it out to everyone. Make sure that you share it with all your friends and so that you can get access to your goals as well as your friend is going to get access to their goals related to the school examinations and all. Right, so what you need to do is you need to share these video lectures to everybody and you need to watch these video lectures till the end so that you can get access to the knowledge you required to crack the examination. All right, and eventually just get your goals, right? That is the main thing. Now in accordance to that, we have also prepared the packages for you all, right? And to access those packages, you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. So when you go on our website, you are going to get these two type of packages over there. One is the full package that contains all the necessary things you need to crack the examination, and the next one is the test series, just included all the testing part. Alright, तो देखो मैं आपको बताती हूँ. जो हमारा full package है, you are going to get all the necessary things. That means you are going to get the study material, you are going to get the bi-weekly quiz, right? That means you are going to be tested twice a week. Alright, you will be going to get the live classes, recorded ones classes, right? You are going to get the video lectures, alright? And the next one is the homework submission feature, and then you are going to get the periodic test papers. Basically, आपको पूरा पार्ट मिलने वाला है. That means you are going to get the study part, then the testing part, right, and then the homework doing part also. So basically all these things are the minimum things you need to crack any examination. That is why we have prepared them as a package for you all, right? And then in the testing, all the testing part, ठीक है, जितना भी testing part है वो test series में आ जाता है. So basically you are going to get the periodic test papers, bi-weekly quizzes and the classes. It could be the recorded ones and the live classes, so you can join that also, right? So basically if you want to join them and you are interested in buying them, then you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, that is the most cool thing because you can now call us and you can know about these packages. You can watch out or get the knowledge that how these are going to help you in your goals and should you be considering them or all. ये सब आपको पता चल जाएगा. Alright, so let's get started. पहले तो promise कर लेते अपन. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the must thing you should do. Alright, revision बहुत ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है. अब देखो सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे. सोलर सिस्टम मतलब ऑल द नेसेसरी थिंग्स.
तो अगर हम ऑल द नेसेसरी थिंग्स को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब हम सोलर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। जैसे कि सन, ठीक है, ये जो सन है, सन के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर्स, ये क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तब जाके हम लोग पूरे सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी ले पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी वास्ट, राइट। जैसे हम प्लैनेट्स के बारे में बहुत 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 बातें कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम बहुत बातें कर सकते हैं, बट आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए दैट शुड बी अप टू यू, ठीक है, कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको किस क्लास के अकॉर्डिंग चाहिए। वरना हम लोग बहुत सारी डीप नॉलेज ले सकते हैं अबाउट द प्लैनेट्स, राइट। हम सिर्फ ऊपर का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, कम से कम इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सोलर सिस्टम को। सो कैन यू सी दिस फोटो है, यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सबका सब सोलर सिस्टम में आता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये चीज़ ये है कि ये जो फोटो है ये सब्जेक्ट टू स्केल नहीं है। दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ स्केल ओवर हेयर। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि भाई इतना बड़ा सूरज होता है, इतना छोटा सा ही होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है, कॉम्पैक्ट वे में आपको चीज़ें बड़ी करके बताई गई हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द सन इन द बिटवीन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो मतलब पूरे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पे हमारा सन है, आवर स्टार, ठीक है। देन यू कैन गेट द मर्करी, ऑलराइट, देन यू कैन गेट द वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। मार्स के बाद कौन आता है, जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, एंड देन कम्स द नेपच्यून। कैन यू सी द प्लूटो विच इज नॉट कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट anymore, ठीक है। कैन यू सी दिस इज अ कॉमेट, ऑलराइट, एंड कैन यू सी these are the asteroids, ऑलराइट। सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली आवर सोलर सिस्टम, जिसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं। बेसिकली ये सब एक फैमिली है सोलर सिस्टम के, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, और इन्हीं की वजह से वी कॉल दिस इज आवर सोलर सिस्टम, ऑलराइट। तो देखिए, सन एंड ऑल बॉडीज इन ऑर्बिट अराउंड इट मेक अप द सोलर सिस्टम। सन और जितनी भी बॉडीज चारों तरफ घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, दैट मेक्स अप दी सोलर सिस्टम। एंड डू यू नो दैट एवरीथिंग जो कि यहाँ प्रेजेंट है वो सन का चक्कर लगाता है, राइट। एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, सन के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने अपने पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। दैट मेक्स अप द सोलर सिस्टम, ऑलराइट। नाउ सी द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन। बेसिकली दिस इज द ट्रू थिंग, ये जो सन है ये सेंटर में। एंड डू यू नो दैट कि भाई पहले जब मतलब जब बहुत ही ज़्यादा स्पेस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, एंड बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, जानना बाहर की दुनिया के बारे में, उस वक्त लोगों का क्या मानना था, लोगों का मानना था कि पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ इज इन द सेंटर, ऐसा वो लोग मानते थे। और वो ये मानते थे कि सन चारों तरफ चक्कर लगाता है, हमारी अर्थ तो बिल्कुल सेंटर पे है। उन्हें ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि उन्हें दिखता था कि भाई सन जो है वो ईस्ट से उगता है, वेस्ट में जाता है, अगले दिन वापस वो ईस्ट में आता है, फिर से वेस्ट में जाता है। तो उनको लगता था कि हमारी धरती तो रुकी हुई है, लेकिन जो सन है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बट फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे ऑब्जर्वेशंस हुए, ठीक है, डिस्कवरीज हुई, लोगों ने और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एंड देन दे गॉट टू नो अबाउट दैट यस सन इज एट द सेंटर, नॉट द अर्थ, alright. So basically now we know that the sun is at the center of the solar system, not the universe, solar system, alright. चलिए, the other members of the solar system include the 8 planets, their moons or satellites, a large number of asteroids, thousands of comets, and innumerable meteors. So basically other members are the planets, all the 8 planets, then the comets, asteroids, सारे के सारे प्लैनेट्स के मून्स, मिटियोर्स, ठीक है, ये सब के सब मिलके हमें बताते हैं, हमें बनाते हैं, मतलब बनाते हैं सोलर सिस्टम। और यू कैन से दे आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। हमें कैसे बनाएंगे, अब देखिए, दीज अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आर बाउंड टू इट बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेज। हर एक चीज जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो किस फोर्स की हेल्प से कनेक्टेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से, ठीक है। तो बेसिकली सन जो बीच में स्टार है उसके पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यू कैन से अप्लाई करता है, सो दैट सारे के सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं दूर दूर तक। यू कैन गेट दैट जुपिटर कितना बड़ा है और कितना दूर भी है, फिर भी वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इवन प्लूटो हालांकि बहुत छोटा है बट बहुत दूर है, फिर भी वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सो बेसिकली ये नहीं पता कौन कितना दूर है कि नहीं, बट इसका सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सभी प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ रिवॉल्व करवाता है एंड ऑल द नेसेसरी थिंग्स लाइक द कॉमेट्स एंड द एस्ट्रॉइड्स एंड द मीटियोर्स, ये सबको चक्कर लगाता है अपना सन। सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका, तभी तो ऐसा करवा पाता है वो, वरना तो कैसे करवा पाता, राइट। चलिए तो अब हम देखते हैं सन के बारे में जो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा यू कैन से स्ट्रॉन्ग रखता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखो, सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारा सन, ठीक है। और अर्थ के पास पहला मतलब यू कैन से फर्स्ट नियरेस्ट सन और द स्टार, यू कैन से दैट, राइट, ये हमारे अर्थ के पास है हमारा सन, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी और द अल्फा सेंचुरी, ठीक है। हालांकि वो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी है ना, वो बहुत 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 बड़ा है, मतलब इस सन से तो बहुत ही बड़ा है, बट वो बहुत दूर है, दैट्स वाई वो हमको सिर्फ पॉइंट साइज दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 minutes टू रीच द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर सिर्फ 8 minutes में कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज लाइट हैज द मोस्ट यू कैन से फास्टेस्ट स्पीड, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? लाइट की होती है, एंड दैट इज व्हाट 3 × 10⁸। और ये लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है, स्टार से आती है बेसिकली, बिकॉज स्टार्स तो वो बॉडीज होती है जिनकी खुद की लाइट होती है, राइट। देखिए अब आगे, द डायमीटर ऑफ द सन इज ओवर 109 times द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड इट इज 333,000 टाइम्स एज हैवी एज द अर्थ। तो देखिए, आप खुद से जानिए कितना ज्यादा बड़ा है ये। कैन यू लुक एट द नंबर? देखो नंबर कितना ज्यादा है इसका। एक तो पहले डेंसिटी देखो तुम यार इसका, सॉरी डायमीटर हमारी अर्थ का डायमीटर और उस डायमीटर का 109 टाइम्स सन का डायमीटर है। सो कैन यू इमेजिन दैट ये कितना ज़्यादा बड़ा है, हमारी अर्थ से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड नाउ सी, ये एज हैवी मतलब इसका जो मास है दैट इज 333, यानी यू कैन से अप टू यू कैन से 3,33,000 टाइम्स इसका मास ज़्यादा है, ऑलराइट। मतलब इतना टाइम्स, मतलब अर्थ का मास और मल्टीप्लाइड इट बाय यू कैन से 3,33,000, तब जाके तुम्हें सन का मास मिलेगा। कैन यू इवन गेट दैट ये कितना हैवी होगा, राइट। हमें तो अर्थ के बारे में पता नहीं है, एंड यू लुक अप द सन, ही इज सो बिग। द सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज कंटिन्यूअसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम at extremely high temperature. So now we know the secret behind the light and the heat it is giving to us or everybody, ठीक है। So basically sun जो है एक स्टार है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। रीज़न इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वो रीज़न क्या है? एनर्जी। इट हैज़ वेरी मच ग्रेटर एनर्जी, ऑलराइट। एंड ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसे? ये एनर्जी इसे मिल रही है हाइड्रोजन उसका कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर आर न्यूक्लियर प्रोसेसेस गोइंग ऑन देयर, ठीक है। बहुत सारी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रही हैं, एंड जब हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस की बात करते हैं वहां पर एनर्जी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, ऑलराइट। एंड दैट इज द रीज़न, क्योंकि इसके है तो सारे स्टार्स हाइड्रोजन के बने हुए, तो सन भी कौन सा अलग है? वो भी एक स्टार है, तो वो भी हाइड्रोजन का बना होगा, लेकिन कंटिन्यूसली हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, एंड क्योंकि वो हीलियम में कन्वर्ट होती है तो एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग मोर मच ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर देयर, एंड जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज ग्लोइंग एंड गिविंग अस लाइट एंड हीट एज वेल, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ द सन इज दस एक्सट्रीमली हॉट एट अबाउट
14 million degree Celsius, while its surface temperature is about 6000 degree Celsius, just like Earth. अर्थ में भी तो यही है. हम लोग देखो कितना नॉर्मली रहते हैं, राइट? हम हमारे लिए मतलब इट इज़ नॉट लाइक वेरी मच ग्रेटर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अर्थ का कोर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, राइट? इसकी वजह से मतलब यू कैन सिमिलर टू दैट, जो सन का कोर है वो कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे है, वो है 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है. एंड इसका जो आउटर सरफेस है, जो कि आप देख सकते हैं आउटर सरफेस, ये जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस 6000 डिग्री सेल्सियस का है टेम्परेचर. ऑलराइट, और उसके बाद तुम देखो, कैन यू सी दीज वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम द सन. ऐसी बहुत सारी वेव्स ऐसे आती रहती हैं और इसकी वजह से हमें कैसा लुक मिलता है, जैसे बहुत ही मॉल्टन स्टेट में, राइट? बट इट इज़ गैशियस एक्चुअली, राइट? दिस इज अ गैशियस पार्ट, और ये बहुत ज़्यादा लेयर्स में होता है. सन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है? एक लेयर तो इनविजिबल होती है जो हमें नहीं दिखाई देती. एक यू कैन सी द रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? फिर कुछ वेव्स ऐसे बाहर आती रहती हैं, तो वेव्स नहीं बोल सकते हम उनको यू कैन से मॉल्टन एनर्जी कह सकते हैं. बेसिकली वहाँ पे जो इतना आपको ऐसा लगता है जैसे इट इज़ कमिंग आउट, राइट? ऐसा बहुत सारे आपको मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन लुक देने के लिए क्या मतलब, दिखता ही है, ऐसा लुक ही मिलता है बेचारे को ऐसा, ठीक है? Compared to the other stars, the sun looks enormous to us as it is so close to the earth. बाकी और स्टार से कंपेयर करें तो ये हमारे बहुत करीब है, एंड दैट इज़ वाई ये हमें बड़ा दिखाई देता है. एटलीस्ट अर्थ से जब हम देख रहे हैं, नॉर्मल सरफेस से देख रहे हैं, तो हमें आप बोल सकते हैं कि थाली के साइज का नजर आता है, राइट? सो वी कैन मेजर अप टू दी, यू कैन से द साइन, और यू कैन से द शेप. The next nearest star, Alpha Centauri, is several times bigger than the sun, but it appears tiny as it is much away from us. This is the reason. क्योंकि वो बहुत दूर है, हालांकि वो सन से बेहद बड़ा है, फिर भी वो हमें तो छोटा ही नजर आएगा क्योंकि वो बहुत दूर है. Sometimes from some areas on the surface of the sun, hot gases shoot outward. These are called the prominences. So basically ये जो hot gases बाहर की तरफ आपको इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है दैट दे आर कमिंग आउटवर्ड, एक अलग ही तरीके से आपको एक विजुअल इफेक्ट दिखता है, राइट? ये किसकी वजह से होता है? दीज हॉट गैसेस शूट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन एंड दीज आर नोन एज द प्रोमिनेंसेस. ऑलराइट, फिर देखिए, देयर आर ऑल्सो सम डार्कर रिलेटिवली कूलर पैचेस ऑफ अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस ऑन द सर्फेस ऑफ द सन. बहुत देखिए, पूरा का पूरा सन इज नॉट अबाउट ग्लोइंग ऑफ गैसेस एक्चुअली. कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर काफ़ी कम टेम्परेचर है, दैट इज यू कैन सी द 4000 डिग्री सेल्सियस, स्टिल वार्म फॉर अस, स्टिल हॉट फॉर अस, बट एज अ कंपैरिजन काफ़ी कम रहता है उनका टेम्परेचर. उनको हम डार्कर पैचेस बोलते हैं, ठीक है? ऐसा हमें दूर से विजिबल नहीं होगा, ठीक है? पास जाने पे हमें ज़रूर विजिबल हो सकता है. दीज स्पॉट्स आर कॉल्ड सन स्पॉट. उसे क्या बोलते हैं? ऐसे स्पॉट जो कि कम टेम्परेचर रखते हैं और काले धब्बे नजर आते हैं, ठीक है? अगर हम पास से देखें तो, लेकिन हम पास से तो देखते नहीं, दैट इज वाई हमें दिखाई नहीं देते. उनको हम बोलते हैं सन स्पॉट्स, ठीक है? एंड आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट टू, दे आर फाउंड टू इंटरफेयर विद द रेडियो एंड वायरलेस ट्रांसमिशन फ्रॉम द अर्थ. और इसके बारे में सारे साइंटिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज ये जो होते हैं सन स्पॉट्स, दे इंटरफेयर विद आर रेडियो सिग्नल्स. ऑलराइट, तो हम जो रेडियो सिग्नल्स बाहर भेजते हैं या फिर कोई भी वायरलेस सिग्नल होते हैं, इन पे अफेक्ट करता है. मे बी इनको करप्ट कर देता है, और मे बी थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, राइट? ये जो रीज़न है जानने की कोशिश की जा रही है, व्हाई इज इट सो. मतलब इतनी दूर बैठे हुए वो जो डार्क पैचेस हैं, वो ही हमारे रेडियो सिग्नल्स के साथ क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? एंड दैट इज द क्यूरियस टॉपिक. बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखने वाला टॉपिक है. दे ऑल्सो प्रोड्यूस चेंज इन वेदर ऑन द अर्थ. और वो क्या कर सकते हैं? वो अर्थ के ऊपर जो वेदर चेंजिंग है उसे जो है दे कैन डू दैट, ठीक है? वो ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोज चेंजेस दे कैन प्रोड्यूस दैट. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द सन हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस प्लैनेट्स ओवर देयर, ठीक है? जैसे ये देखिए, कैन यू सी ऑल द प्लैनेट्स हियर? देयर आर 8 प्लैनेट्स राइट ओवर हियर. यू कैन लुक अप टू दैम, ठीक है? लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई ये दिस इज रियलिटी. ये रियलिटी नहीं है, ये काफ़ी दूर होते हैं रियल में, ठीक है? और इनका साइज भी काफ़ी वेरी करता है. सिर्फ एज अ फोटो टू रिप्रेजेंट इट वी हैव मेड इट लाइक दिस, ठीक है? सो देखो, सबसे पहले कौन? मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ,
देन मार्स, देन जुपिटर. कैन यू लुक अप टू दैट? जुपिटर कितना बड़ा दिखता है. Then comes the Saturn, and then comes the Uranus, and then comes the Neptune. So there are 8 planets. We can say 8 planets हैं. ठीक है, तो देखिए, the word planet is a Greek origin and means wanderers. In Hindi, planet are known as ग्रह. हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं. हमारे पास 9 ग्रह है, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्लैनेट वर्ड है ये आया हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, एंड दैट मीन्स वैंडरर्स, मतलब घूमते रहते हैं. ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि सचमुच में सन के चारों तरफ घूमते ही रहते हैं लिटरली, इसीलिए इनको ऐसा बोला जाता है. द प्लैनेट इज दोज ब्राइट हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. इन्हें ब्राइट क्यों बोला है? बिकॉज ये चमकते हुए दिखते हैं. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सन की रोशनी जब गिरती है, जब सनलाइट फॉल होती है, तो ये उस लाइट को हम तक रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो हमको तो ओरिजिन वही दिखता है ना कि भाई वहीं से लाइट आ रही है. सो वी टेक दैट एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट. आपको आसमान में कई बार ऐसे जो प्लैनेट से दिखाई दे सकते हैं. सबसे कॉमन जिसमें से है वीनस. वीनस सबसे कॉमन है. लेस कॉमन अगर हम बोले तो वो मरकरी है. ठीक है, तो आपको वेरियस प्लैनेट्स ऐसे दिखाई दे सकते हैं. इवन यू कैन लुक अप टू द जुपिटर्स एंड द सैटर्न ऑल्सो, बट रेयरली बहुत कम होता है. ठीक है, तो ऐसी हेवनली बॉडीज, हेवनली क्यों बोला? क्योंकि बहुत बड़ी हैं साइज में, दैट्स व्हाई. सो दीज हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, अब देखिए, दे लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट ट्विंकल. ऐसा लगता है वो चमकते हुए दिखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो स्टार्स हैं, बट वो ट्विंकल नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है. मतलब स्टार्स तो बहुत 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 दूर होते हैं. ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट उतने दूर नहीं है जितने कि स्टार्स दूर हैं, इसीलिए हमें ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आते. Their observed brightness is only due to the light of the sun reflected by them. वो जो चमकते हुए नजर आते हैं वो सिर्फ इसी वजह से नजर आते हैं कि भाई उनके ऊपर सनलाइट फॉल होती है, वो हमारी आंखों तक जाती है और हमें लगता है कि भाई वहीं से लाइट आ रही है, तो वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है एज यूजुअल. ठीक है, जैसा कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है. There are 8 planets now in our solar system. अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं. अब ये मत कहना कि आखिरी वाला प्लैनेट का क्या हुआ. क्यों? क्योंकि वो जो प्लैनेट था उसे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है. वो अभी भी वो सन के चारों तरफ रोटेट करता है, बट उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया. वाई सो? क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट का जो ऑर्बिट है उसे क्रॉस कर देता था. दैट इज वाई. ठीक है, सबको बोला जाता था अपने अपने उसमें मूव करो, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करो, पर वो दूसरों के ऑर्बिट में कट आउट कर देता था, इसीलिए उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया. सो प्लूटो अब हमारे प्लैनेट्स में शामिल नहीं है. ठीक है, दे मूव इन एलिप्टिकल शेप्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स अराउंड द सन. वो क्या है कि वो सारे के सारे एलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनके रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्बिट्स, you got to know that I'm talking about the path on which these planets revolve. ठीक है, the 8 planets of our solar system in increasing order of their distances from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. sun से दूरी के हिसाब से there are 8 planets, and if somebody is having any, you can say, any difficulty in remembering them, write this in order. तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप लोग एक ट्रिक से इसे रिमेंबर कर सकते हैं. ठीक है, हो सकता है सभी बच्चे इजीली इसको याद कर लें. ठीक है, बट अगर गलती से भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं याद हो पा रहा है, ये एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं याद हो पा रहा है, सो ही और शी कैन रिमेंबर माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट served us noodles. ठीक है, so if you remember this sentence, then you can remember the number of planets right in this order. How? See, my very efficient mother just served us noodles. तो देखिए, my से Mercury, very से Venus, efficient से Earth, mother से Mars, just से Jupiter, served से Saturn, us से Uranus, noodles से Neptune. Alright, so basically you can remember all the 8 planets, ठीक है, by using this one sentence in the right order. Alright, चलिए आगे चलते हैं. The planets relatively nearer to the sun have features that are quite different from those which are far off. अब देखो, ये जो 8 planet है, हमने क्या किया, ऐसे 4 planets, ठीक है, हम 4 ही बोलेंगे,
ऐसे 4 प्लैनेट जो सन के काफ़ी पास हैं, ठीक है। सो ऐसे 4 प्लैनेट जो सन के काफ़ी पास है, उनका स्ट्रक्चर, उनका यू कैन से नेचर डिफरेंट है, ठीक है। मतलब वो जिस तरीके से बने हुए हैं वो काफ़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू दोज विच आर फार ऑफ, जो कि बहुत दूर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ा, प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ा। एंड 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द जोवियन प्लैनेट्स। सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट द 2 कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट्स हियर। 2 कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिसमें टेरेस्ट्रियल 1 जो कि ऐसे हैं जो कि फर्स्ट 4 आते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की लिस्ट में कौन कौन आता है, पहला आता है मरकरी, दूसरा आता है वीनस, तीसरा आता है अर्थ, चौथा आता है मार्स। सो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के काफी पास हैं, इनको हमने किस कैटेगरी में डाला है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की कैटेगरी में। और वहीं पर ये जो जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी है उसमें पीछे के 4 प्लैनेट्स हम लोगों ने इसमें एंट्री करवा दी है। वो बेसिकली यहां पर होंगे जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है। तो लास्ट के ये 4 जो प्लैनेट्स हैं वो हमने जोवियन कैटेगरी में डाल दिए। अब ऐसे क्या डिफरेंस था कि हमें इनको अलग अलग कैटेगरीज में डालना पड़ा, ठीक है। अब देखो पहला वाला जो है दैट इज यू कैन से द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच हैव यू कैन से सॉलिड और रॉकी सरफेसेस, और वो पूरे के पूरे रॉकी हैं, मतलब उनके वो रॉक से बने हुए हैं अगर हम बोले तो, ठीक है। सो इनका जो स्ट्रक्चर है यू कैन गेट दैट सॉलिड एंड रॉकी स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। सॉलिड एंड रॉकी प्लैनेट्स बोल सकते हैं अपन इन्हें। एंड दीज आर द स्मॉल वन, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल इन साइज। वहीं पर अगर हम बात करें जोवियन प्लैनेट्स की, तो ये जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं दीज आर वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़े बड़े होते हैं, चारों ही प्लैनेट्स काफी बड़े हैं, ठीक है। सो और इनका जो नेचर है, मतलब दे आर नॉट रॉकी और सॉलिड, दे आर गैसियस। यू कैन सी दीज आर द बिग गैसियस बॉडीज ओवर देयर, ऑलराइट। सो ये कैसे हैं, गैसियस प्लैनेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, विच आर वेरी बिग इन साइज। ठीक है, वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। एंड दे आर गैसियस, ठीक है, मतलब ये गैसियस होते हैं पूरे के पूरे, रॉकी नहीं होते जैसे कि फर्स्ट 4 होते हैं, ठीक है। सो आप इन्हें फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, लेट्स लुक अप टू द वेरियस प्लैनेट्स ओवर देयर। तो सबसे पहला प्लैनेट जो है मरकरी, लेट्स टॉक अबाउट मरकरी, ऑलराइट। ये मरकरी है, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये मरकरी, राइट। लेकिन आपको पता है ये क्योंकि सन के सबसे क्लोज है एंड ये काफी छोटा है, राइट। तो क्योंकि सन के सबसे 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 क्लोज है, इसी वजह से ये बेचारा बहुत जल्दी सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, राइट। तो इसकी वजह से अगर हम मरकरी पर होते तो हमारा बर्थडे बहुत जल्दी आता, लाइक 88 डेज, बस 88 डेज में ही अपना बर्थडे आ जाता। देखिए मरकरी लाइज क्लोजर टू द सन देन एनी अदर प्लैनेट, मरकरी बहुत पास है एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। अब देखिए इट इज अ ड्राई हॉट वर्चुअली एयरलेस प्लैनेट, ये बहुत ही ज्यादा सूखा हुआ, गर्म
और उसके ऊपर है ही नहीं, उसका कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वर्चुअली एयरलेस प्लैनेट है, ठीक है। और अगर एयर है भी तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सन के काफ़ी ज़्यादा पास है, दैट इज़ वाई हॉट तो होना है ही है। ड्राई है, ठीक है, क्योंकि सन के बहुत ज़्यादा पास है तो इसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट फॉल होती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच ड्राई, इट इज़ वेरी मच यू कैन से हॉट एंड टोटली एयरलेस, इसके ऊपर कोई भी एयर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इट हैज़ क्रेटर्स लाइक द मून बट इट इंटीरियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। इसके मून के जैसे क्रेटर्स होते हैं बट नो सैटेलाइट, ठीक है, इसका खुद का कोई भी मून नहीं होता है। एंड रिमेंबर कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बोले तो स्ट्रक्चर मतलब अंदर से जिस मटेरियल का बना हुआ है वो हम काफ़ी सिमिलर टू द अर्थ मान सकते हैं, मतलब आयरन, हेवी एलिमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, लाइक द अर्थ इट्स इंटीरियर कंटेन्स आयरन एंड अदर हैवी एलिमेंट्स। अर्थ के जैसे ही इसके इंटीरियर में, ठीक है, जस्ट लाइक द कोर और द सर्फेसेस, ठीक है, तो ये सब जो हैं वो कैसे हैं, दे आर कंटेन आयरन एंड हैवी अदर हैवी एलिमेंट्स, ये सब वो कंटेन करता है मरकरी। ऑलराइट, फिर देखिए, मरकरी इज मच स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। अर्थ से बहुत छोटा है, हम लोग तो बोलें पूरे सारे 8 प्लैनेट में सबसे छोटा है, ठीक है। Mercury is less common planet that appears in the east before sunrise, so it is also sometimes called the morning star. ये आपको ईस्ट में दिखाई दे सकता है बिफोर सनराइज, ठीक है, तो ये कभी कभार, ऐसा हमेशा नहीं दिखता है, कभी कभार दिखता है, इसीलिए लेस कॉमन प्लैनेट है। इसी वजह से इसे मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है क्योंकि हमें सुबह सुबह दिखाई देता है बिफोर सनराइज। ऑलराइट, चलिए अब देखिए, one day on Mercury, the time it takes for Mercury to rotate or spin once with respect to the stars takes 59 Earth days। मतलब एक दिन जो मरकरी पे होगा वो 59 दिन पे होगा, मतलब हमारे 59 days is equal to the 1 day on Mercury, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पैन हो जाएगा, लंबा स्पैन हो जाएगा, लाइक वी हैव टू वर्क लाइक फॉर सो मच टाइम। One day night cycle on Mercury takes 175.97 Earth day। वो तो सिर्फ दिन की बात थी, ये देखो 59 Earth days is just day, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दिन, जैसे हमारे यहाँ एक होल डे इज लाइक 24 hours, राइट। इसमें से आधा तो दिन रहता है और आधा तो रात रहता है, राइट, मतलब हमें डे एंड नाइट फॉर्म्स वन डे, राइट। इसी तरीके से इनका डे एंड नाइट कब हो रहा है, 175.97 Earth days, मतलब इतने ज्यादा दिनों में तो इसका एक दिन खत्म होता है। एंड लुक अप टू द ईयर देखो, मरकरी मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन, अ ईयर इन मरकरी टाइम इज जस्ट 88 Earth days। तो मतलब ये एक साल पहले कंप्लीट करता है और यू कैन लुक अप टू दिस 1 day बाद में कंप्लीट करता है, मतलब हमारा बर्थडे पहले आ जाएगा और दिन बाद में जाएगा, राइट। सो दैट इज सो स्मॉल as compared to the अर्थ ईयर और अर्थ डे, ठीक है। अर्थ डे तो हालांकि काफ़ी कम है, इससे तो कम है, काफ़ी कम है, राइट, बट ईयर इज वेरी बिग देन दी मरकरी। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अप टू द सेकंड प्लैनेट दैट इज द वीनस। ऑलराइट, तो वीनस जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, येलोइश, और ये बहुत ब्राइट है, मतलब आप बोल सकते हैं कि सभी प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है वो है वीनस, ठीक है। देखिए, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। पहले आता है सन क्योंकि वो तो स्टार है, दूसरा आता है मून, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है वीनस जो कि सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है हमारे स्काई में। Alright, its bright appearance is due to its cloudy atmosphere which reflects almost 3/4 of the sunlight falling on it. So basically, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट तो है नहीं, तो ये ब्राइट किस वजह से दिख रहा है, बाय रिफ्लेक्शन, एंड डिपेंड करता है ये कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जितना भी इसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है 3/4 सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। जाओ रिमेंबर कि भाई 3/4 सनलाइट को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारी आंखों तक जा रही है, एंड दैट इज व्हाई वी टेक दैट एज एन ब्राइटेस्ट इमेज। सो बेसिकली इसका क्लाउडी एटमोस्फेयर ही इसका वो यू कैन से इसका क्लाउडी एटमोस्फेयर ही एज अ वी कैन से फैक्टर है और रीजन है कि ये सबसे ब्राइटेस्ट हमें नजर आता है, ठीक है। फिर देखिए, वीनस इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ बट रोटेट्स रिलेटिवली स्लोली अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ के ऑलमोस्ट सेम साइज में है बट ये बहुत धीरे रिवॉल्व करता है,
काफी धीरे रिवॉल्व करता है अराउंड दी एक्सिस, ठीक है, खुद के एक्सिस पे काफी धीरे रोटेट करता है। इट हैज नो मून और सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन, खुद की तो कोई मून नहीं होती, सैटेलाइट नहीं होती। सो देयर आर 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जिनकी कोई भी सैटेलाइट या मून नहीं है। फर्स्ट वन इज द मरकरी, सेकेंड वन इज द वीनस, ठीक है, वीनस की भी कोई मून और सैटेलाइट नहीं होता है। वीनस इज इवन हॉटर देन मरकरी दो इट इज relatively farther away from the sun. This is because of the high percentage of carbon dioxide in its atmosphere. So basically आपको पता है 96% कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑन वीनस। जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर है वीनस का, उसमें 96% CO2 मिलती है। एंड यू ऑल नो कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब ये सनलाइट को, सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो जितना भी सन का हीट इसके ऊपर फॉल होता है, CO2 प्रेजेंट होने की वजह से वो उसे ट्रैप कर लेता है, एंड ट्रैप करने की वजह से ये उसे काफ़ी ज़्यादा हॉटर बना देता है। हालांकि मरकरी ज़्यादा क्लोज है सन के, फिर भी वीनस सबसे ज़्यादा गर्म है। रीज़न इज द CO2, वहाँ पर CO2 है और CO2 ट्रैप कर लेता है। CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, दैट इज द रीजन कि ये काफी ज्यादा हॉट है, ठीक है। देखो, दिस गैस ट्रैप्स मोस्ट ऑफ द सन्स हीट फॉलिंग ऑन इट, ज्यादातर हीट को ट्रैप कर लेता है। दिस इज ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो बेसिकली आप ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जानते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये वीनस के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर CO2 प्रेजेंट है। अब ज़्यादा अमाउंट में अगर CO2, वो सोचिए 96%, लाइक ऑलमोस्ट पूरा CO2 का बना हुआ है, राइट। सो वो क्या करती है, ज़्यादातर हीट को ट्रैप कर लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती। एंड दैट इज़ द रीज़न कि खुद का वीनस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड दैट इज़ द वाई इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। अब देखिए आगे, One day on Venus lasts 243 Earth days because Venus spins backwards with its sun rising in the west and setting in the east. एक दिन Venus का, मैंने आपको बताया था, बहुत स्लो रोटेट करता है। एक दिन Venus का 243 Earth days में कंप्लीट होता है और ये बैकवर्ड रोटेट करता है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ तो सनराइज ईस्ट में होता है, इसके यहाँ पे सनराइज कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। सो इट रोटेट्स बैकवर्ड्स, ठीक है, एंड वेरी स्लो, लाइक सी 243 अर्थ डेज में इसका एक दिन कंप्लीट होता है। Venus is most common planet that appears in the east before sunrise and immediately after sunset. So it is also often called the morning and the evening star, ठीक है। ये इसको उपाधि दी गई है मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार बिकॉज ये जो प्लैनेट है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा, एक तो ब्राइट है, तो आपको सन के पास में नज़र आ सकता है, ऑलराइट। तो आपको सनराइज एंड सनसेट इन दोनों ही टाइम में आपको ये दिखाई दे सकता है, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार, क्योंकि चमकता हुआ दिखाई देता है। सो वी नेम दैट एज इट इज़, ठीक है। और ये हालांकि थर्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्लैनेट, राइट, मतलब ब्राइटेस्ट होने के चक्कर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सन के बार बार पास में दिखता है। Now comes our Earth. This is a unique and a beautiful planet. Why so? Because we live on it, right? That is why it is the most beautiful and the unique planet. All right. So basically, इस planet के ऊपर exist करती है humankind, right? देखो, the Earth is a very unique and special planet of our solar system. Earth के पास एक moon है, right? आपको पता है already. You can see various phases of those moon, right? Like the other planets, the Earth not only revolves around the sun but also rotates about an imaginary axis of its own. खुद की एक्सिस पर भी रोटेट करती है, मतलब डे एंड नाइट फॉर्म करती है। खुद की एक्सिस पे रोटेट करेगी तो डे एंड नाइट फॉर्म करेगी, और सन के चारों तरफ रोटेट करेगी तो ईयर फॉर्म करेंगी, राइट। चलिए देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एट एनी टाइम हैज डे, द अदर पोर्शन फेसिंग अवे हैज नाइट। जैसे देखो, अगर ये अर्थ है, यहाँ से सनलाइट फॉल हो रही है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट फॉल हो रही है, तो ये पीछे का पूरा एरिया कहाँ है, अंधेरे में चला गया, तो वहाँ पे रात हो गई। और ये क्योंकि यहाँ पे सनलाइट फॉल कर रही है तो ये एरिया है दिन में, ठीक है। तो दैट मीन्स जो पूरी अर्थ है उसका हाफ पार्ट पे सन, हाफ पार्ट पे अर्थ। हाफ पार्ट जो अंधेरे में है, जिसके ऊपर सनलाइट नहीं फॉल कर रही है, वो कहाँ गया, मतलब यू कैन से अंधेरे में, यानी कि रात हो रही है। और जो वो पार्ट जो कि सन को फेस कर रहा है,
दैट पार्ट हैज डे ऑन इट, ठीक है। फिर देखो, एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस डे एंड नाइट फॉलो वन अनदर, एक दूसरे के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आपको डे एंड नाइट फॉर्म होते मिलते रहेंगे। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। पूरा का पूरा जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इट इज नॉट वर्टिकल, वर्टिकल नहीं है उसका एक्सिस, थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, और जिसकी बदौलत क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ये दोनों पे समर एंड विंटर कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेडनेस। ऑलराइट, तो देखो क्या होता है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर समर मिलेगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि अवे फ्रॉम द सन है तो वहां पर आपको विंटर मिलेगा, ठीक है। फिर साउदर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ आ जाता है तो वहां पे समर हो जाता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर हो जाएगा तो वहां पे विंटर आ जाता है। एंड वाइल हैपनिंग दिस ऑल, जब ऐसे इंटरचेंज होते हैं, इन बिटवीन दोज इंटरचेंज वहां पर ऑटम और स्प्रिंग जैसे सीजन्स आते हैं, ठीक है। अब हमारे अर्थ के बारे में हमें काफी कुछ पता है, पूरा का पूरा वन रिवॉल्यूशन जो है 365 डेज प्लस 1/4 डेज में होता है, राइट। उसके अलावा हमारी अर्थ के कोर में बहुत ज्यादा आयरन मोल्टन लावा है, राइट। ये भी हमें पता है कि हमारे अर्थ की कोर में काफी ज्यादा हेवी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और ये भी पता है कि भाई अर्थ का जो कोर है दैट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। सो वी ऑल नो अबाउट इट। हमारी अर्थ में मोस्ट ऑफ द एयर इज द नाइट्रोजन, ठीक है, मतलब ज्यादातर अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन का है। देन कम्स टू द ऑक्सीजन एंड देन द अदर गैसेस ओवर देयर, ठीक है। सो देखिए, it completes one revolution around the sun in nearly 365 1/4 days. When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it is summer there. At that time it is winter in the southern hemisphere. So opposite poles पे, opposite hemispheres पे opposite seasons होते हैं, ठीक है। देखिए, the reverse happens when the northern hemisphere is tilted away from the sun. Autumn and spring occur when the earth is in between these two extreme position in the orbit. So basically summer और winter होने के दौरान जब वो interchange हो रहे होते हैं, at that time spring and autumn seasons जो हैं तब आते हैं। Basically we know that, right? हमारे अर्थ पे most of the part is liquid water, ठीक है, land and liquid water if we talk about, ठीक है। हो सकता है दूसरे planets पे ऐसा नहीं हो, right? and ऐसा हम जानते भी कि नहीं है ऐसा, ठीक है, तभी तो वाटर एग्जिस्ट नहीं करता कभी किसी पे भी। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि हमारी अर्थ पे जो पूरा का पूरा नेचर है, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, दैट इज टोटली लाइक फेवरेबल टू अस एंड वी कैन लिव ऑन इट, दैट इज व्हाई वी आर स्टिल लिविंग ऑन दिस, ठीक है। हालांकि हम लोग और भी ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ इट कम्स टू दी मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, एज यू कैन सी दिस इज रेड इन कलर, राइट। बट इसका जो रेड कलर है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, मोस्टली इट इज बिकॉज हम लोग सोचते हैं, ऐसा बोला जाता है दैट इट इज मेड अप ऑफ आयरन, दैट इज व्हाई इट हैज अ वेरी मच रेडिश अपीयरेंस, बट वी डोंट नो येट, ठीक है, वी डोंट नो येट, हम नहीं कह सकते अभी इसको एग्जैक्टली। तो देखो, मार्स जो है वो यूजुअली अपीयर रेडिश, hence it is also known as the red planet, इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। Its surface resembles a cold high altitude desert. इसकी जो सरफेस है वो काफ़ी ठंडी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान की तरह, मतलब ऊंचे रेगिस्तान की तरह, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। इसका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, CO2, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन वाटर वेपर्स आर देयर। बट आपको पता है इसमें क्या होता है, जो वी कैन से दैट इसका लो प्रेशर है, लो टेम्परेचर है मार्स का, एंड दैट इज द रीजन कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में वहां एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। दैट इज द रीजन, क्योंकि उसका लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर है। Its surface temperature and surface pressure are both very low. These conditions make it unlikely for water to exist in a liquid state on this planet. इस planet पे liquid state में water को exist करने के लिए थोड़ा high temperature and high pressure चाहिए।
बट बिकॉज इट हैज़ लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दैट इज द रीजन कि वहाँ पर लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट नहीं करता. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए. द डायमीटर ऑफ द मार्स इज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ. अर्थ से के जो डायमीटर उससे थोड़ा सा ज्यादा, यू कैन से हाफ ऑफ दैट एंड देन थोड़ा सा ज्यादा. So it is little bit more than half of the diameter of the earth, right? So basically we can say that it is not bigger than earth, ठीक है, बल्कि ये छोटा है काफी ज्यादा. Its mass is however only 1/10 of that of the earth. Mars therefore has a low average density as compared to the earth. उसकी बहुत ही ज्यादा कम डेंसिटी है एवरेज डेंसिटी की बात करें तो. क्यों? क्योंकि जो मार्स का मास है दैट इज ओनली 1/10 ऑफ द अर्थ. दैट इज द रीजन कि इसके पास डेंसिटी कम हो गया. एक तो यू कैन से हाफ ऑफ द, यू कैन से लिटिल बिट मोर देन हाफ ऑफ द रेट डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड it has 1/10 of mass only. That is the reason it has low density over there. Mars has two natural satellites of moon named as Phobos and Deimos. Mars के पास दो natural satellites हैं. देखो पहला जो मरकरी था एक भी सैटेलाइट नहीं, वीनस एक भी सैटेलाइट नहीं, अर्थ एक सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं. मार्स के पास दो सैटेलाइट है जिसे हम फोबोस एंड डीमोस कहते हैं. ठीक है, उसका नाम क्या है? फोबोस एंड डीमोस. ऑलराइट, देखिए वन डे ऑन मार्स टेक्स लिटिल ओवर 24 आवर्स. 24 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वन डे होता है मार्स पे. मार्स मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन. अ ईयर इन मार्शियन टाइम इज 687 अर्थ डेज. तो मतलब 687 अर्थ डेज में जाकर वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्स वी हैव स्टडीड. और जितना हम लोगों ने इसे देखा है. ऑलराइट, सो देखिए हम लोगों ने आज मेनली सन एंड द 4 planets वी हैव स्टडीड, राइट. Next 4 planets and the remaining you can say the members of the solar system, we are going to study them in the next lecture. Alright, so I am ending this lecture here. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.